Okay, good evening, everyone. So this is Ishan, Secretary of ISETS, and here we go with our very first event. So Shakaina, we are good to start, and we can proceed. Shagana, is there any issue at your end? Okay. Good evening to one and all present here. Good evening to Dr. Vaishali Patel, our principal ma'am, HOD Rishil Chatrala sir, and our chief and our guest for today, Mr. Prabhat Kumar Srivastav. My name is Aditi Naik, And my name is Kumar Shivam Singh. and we are your hosts for the evening. The entire committee of ISETS has organized this event today, where we got the privilege to chat with Mr. Prabhat Kumar Srivastav sir. Let me introduce you all to one of the most determined persons I've heard in my life. He has served the nation by working for over 15 years in the Indian Naval Engineering Systems and Ships, including the biggest one commissioned, INS Virat. He has been the Chief Shipwright Artificer Officer for Fire and Safety Systems. Along with working in this field, he decided to study engineering. After retirement also, Sir did not settle. He is now working in Indian Railways Western Command as Senior Section Engineer. We all are very intrigued looking at your journey, sir, and we would like to know how you accomplished all of this. We wish to learn a lot from you, sir. और इस इंटरव्यू में हम आपके कुछ स्टोरीज भी सुनना पसंद करेंगे सर एंड बिफोर वी स्टार्ट आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे Hi, good evening to all, and thanks for giving me this honor. Yes. Okay. Yeah, so before we start with the conversation, I would like to just inform all of you all that the floor is open to you all as well, our audience, and you can ask your questions by putting it in the chat box, and we shall take it up at the end. Yeah, thank you, Aditi. Sir, after hearing such an illustrious career you have had over the years, I eagerly wanted to ask you that how did you plan out your aims? अपने aims को plan out कैसे किया throughout the years? And when did you decide to take such a brave step going into the Indian Navy? Actually, प्लान का कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं था. पहले अच्छा लगता था कि नहीं हाँ ठीक है, फौजियों को देखता था तो एक अलग सी फीलिंग आती थी कि नहीं हाँ हम भी कुछ ऐसा करेंगे. और एक अपॉर्चुनिटी आई एग्जाम के लिए. हम लोग एक साथ 12 लोग गए थे कानपुर में, जहाँ की रिटन में सारे फेल हुए, मैं अकेला पास हुआ. सब वापस जाने लगे, मैं बड़ा मायूस हो गया कि अरे all are leaving me and I will be living here. So I requested one of my friend, okay, you have just because no physical examinations there, and definitely I will not pass. I cannot pass it because I have never practiced running and all those things. So he stayed with me, but I cleared that also. So he left me because after that medical was there, and medical was planned for next morning. So I requested doctor, please do it tonight only. So my medical was done evening 8 o'clock. Then, and when I got this job, I was having 2 other jobs in my hand. I was in doing job in Hindalco, Renusagar, and even one UP government post, village development officer. But
after comparison, I thought no, Navy is something different. White dress and all other, मतलब जो कुछ भी था जो हम सोच सकते थे वो फौजी सीरियल था और क्या क्या, तो व्हाइट ड्रेस बड़ा अच्छा लगता था. हाँ ठीक है, so घुस गए. सर जो आपको फीलिंग आई गेस वो हुई होगी जब आपने फर्स्ट वो व्हाइट ड्रेस लाइक पहना होगा, लाइक आई कांट इवन इमेजिन सर वो कैसी फीलिंग होगी. लाइक आपने वो फीलिंग के लिए आपने वो मतलब वो एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दिया एंड देन यू गॉट इट. तो वो तो ठीक है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई क्योंकि वो सिर्फ देखने में अच्छा था. वो व्हाइट ड्रेस पहनने के पहले जो 2 महीने सुबह 4 बजे से उठा के और शाम के 9 बजे तक वो ऑन द टो रखते थे, तो वो व्हाइट ड्रेस पहनने का बिल्कुल मजा नहीं आया. लेकिन ये था कि इट वाज गुड टाइम. आज सोच के अच्छा लगता है, मजा आता है सोच के, लेकिन उस समय लगता था कि अब आप सोचो कि अभी आपको इतना मजा आया है. हम लोग सुबह कितना 21.5 ईयर्स में मैंने ज्वाइन किया था एंड सुबह 4:30 बजे से सब दौड़ते थे, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं. एक दौड़ता था और उसके पीछे पीछे सारे दौड़ रहे हैं. वो पहाड़ नदी नाले क्रॉस करते करते हम 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगा करते. जब लौटते थे तब कहीं जाके उजाला होना चालू होता था. तो समझ में नहीं आता था कुछ, लेकिन हाँ अब था, वहां घुस गया तो निकल भी नहीं सकते थे. तो धीरे 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 अच्छा लगने लगा. जब यूज्ड हो गए. शुरू फर्स्ट वीक इट वाज हॉरिबल. काफी एडजस्ट करना पड़ा. सिविलियंस और डिफेंस में यही तो फर्क है. हाँ, उतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए. हाँ सर, आजकल मतलब ये आजकल का जो वर्किंग एज ग्रुप है, तो उनको काफी टाइम लगता है वर्क लाइफ बैलेंस वो हिट करने में. और आपका जैसे हमने सुना कि अलॉन्ग विथ वर्किंग आपने इंजीनियरिंग चूज किया पढ़ना, तो आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया? मतलब क्या था उसके पीछे माइंडसेट इंजीनियरिंग पढ़ने का? एक्चुअली फौज की जो सर्विस हमने जो 15 इयर्स की, तो आफ्टर पासिंग सर्टेन इयर्स ये था कि 15 साल से ज्यादा नहीं कर पाएंगे. 15 साल जो 15 इयर्स इज मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन. जी. तो पेंशन के लिए तो ये होता था कि जब आप 15 इयर्स के बाद सर्विस छोड़ोगे, लाइक 36.5 इयर्स में मैंने जब नेवी छोड़ा तो उसके बाद मेरे पास तो पूरी लाइफ आगे पड़ी थी. तो कुछ तो आगे जाके बाहर करना है, ऐसा तो नहीं रिटायर हो गए तो घर जाके बैठेंगे. उसके लिए तो अपना कैरियर प्रोस्पेक्शन देखना था. तो हम लोगों ने पढ़ाई चालू की. तो शिप में जब रहते थे, इवन सेव करते रहते थे तो भी पढ़ते रहते थे. 8 घंटे की ड्यूटी होती थी. नाइट में कुछ आधे घंटे का राउंड वगैरह होता था, बट उसके बाद जो टाइम मिलता था तो उसमें हम कोशिश करते थे कि पढ़ाई कर ले कुछ. छोटे शिप में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि सीज रफ हो जाता था तो इतना बुरा हाल रहता था. घूमने की इतनी होती थी. बट विराट एंड शिप में थोड़ा सा रिलैक्स था. तो वही पूरा आजू बाजू में सब स्ट्रेस भी रहता होगा तब. हाँ. तो सर लाइक यू वेंट बैक टू कॉलेज. अब कॉलेज में लाइक वो एक पर्टिकुलर कोर्स आपने किया आफ्टर सर्विंग फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. तो सर वो एक विल कैसे, फॉर एग्जांपल हम जो स्टूडेंट्स हैं आजकल तो ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो हमारा विल लेवल तो और आपका विल लेवल में तो काफी डिफरेंस होगा सर. तो आपका उस समय कैसा विल लेवल था और उस समय कैसे इनकलकेट किया सर आपने मन में कि नहीं मुझे पढ़ना ही है? तो है ना कि अभी मैं जब 36.5 इयर्स में रिटायर हो रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास, या लोग 35 ईयर्स में मैरिज करते हैं, मैं 36 ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे पास तो मेरी पूरी लाइफ पड़ी अभी. तो उसको आगे देखते हुए कि नहीं हाँ करना है तो करना है. कौन क्या सोच रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें अपना कैरियर देखना है, अपना फ्यूचर देखना है, इसके लिए हमें पढ़ना है. तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इवन पार्ट टाइम मैंने ग्रेजुएशन भी किया, मतलब बीए. जब मैं दिल्ली में था 2 साल दिल्ली पोस्ट में, तो वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम बीए भी किया कि इन केस अगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाया कोई और बात हो गई तो. बिकॉज एमआई करना इज नॉट एन इजी जॉब व्हाइल यू आर इन सर्विस और दैट इन डिफेंस. बहुत टफ पड़ता है. एनी हाउ ऐसे करके
सर तो जो जानने की मतलब जो जिज्ञासा बोलते हैं कि बस जानना है जो अपने सराउंडिंग्स में हो रहा है या आपकी लाइफ में हो रहा है, बस वो जानने की इच्छा रहनी चाहिए। वो आप लाइफ में मतलब कोई भी एज रहे आपका नहीं रहे या कोई भी आपका करियर हो या नहीं हो, बट वो एक लेवल ऑफ डिजायर टू जस्ट नो थिंग्स, तो वो तो आपने सर जो आपने अभी तक किया है वो तो काफी अमेजिंग है। तो करना पड़ेगा। अगर आपने अपना कुछ सेट किया है गोल, तो आपको उसे पाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। बाकी नहीं तो फिर वो तो है कि चलता है तो उसमें मजा नहीं आता है। भी रिटायरमेंट के बाद मैं पेंशन लेके मैं आराम से घर में बैठता, कोई इशू नहीं था कि हाँ, लेकिन आपको अपना एक लेवल मेंटेन करना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, आपको अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। जी सही बात है। आजकल जैसे इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम एज अ जनरेशन काफी एक लेवल पे कंफ्यूज्ड है कि कैसे करियर बनाना चाहिए। तो कुछ लोग हैं हम में से जिन्हें नेवी या कोई और डिफेंस फील्ड में भी जाना है, तो ऐसे अप्रोच कैसा होना चाहिए? हैविंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमको किस मार्ग पे जाना चाहिए डिफेंस में जाने के लिए? नहीं, इस एज ग्रुप के बाद तो आई थिंक आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो वाया सीडीएस, आफ्टर क्लियरिंग सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आफ्टर इंजीनियरिंग यू क्लियर दैट एंड यू कैन ज्वाइन। हाँ, बट उसके लिए फिर ऐसे कोर्स का जो सब्जेक्ट्स है उसमें अलग अलग वैरायटी रहता है ना, मतलब व्हाट इज द पोर्शन एग्जैक्टली? वो तो आपको आप देखोगे ना तो नेवी के साइड पे, आर्मी के साइड पे सब कुछ सारा डिटेल्स वहां मिल जाएगा मेरे ख्याल से आपको कि सीडीएस के बारे में, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम जो एंट्री होती है वो 12 के बाद ही होती है। एक एंट्री है जो सीडीएस के थ्रू लेते हैं वो लोग, तो वो आप उनके साइट पे चेक करेंगे तो पता चलेगा। ओके, और इसके लिए ऐसे स्किल्स कौन से हमें डेवलप करने चाहिए? व्हाट क्वालिटी शुड वी हैव टू एंटर नेवी एंड डिफेंस फील्ड्स? उसकी टेंशन आप मत लो, तो अपने आप इनकलकेट करा देंगे सब, जो एबिलिटी उनको चाहिए ना वैसे ही ट्रेनिंग देते हैं कि सब हो जाता है। लेकिन ये है कि लोग बोलते हैं फिजिकली फिट और मेंटली टफ। अगर आप एक फौजी हो तो फिजिकली फिट और मेंटली टफ, कि 8 घंटे खड़े रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको अगर आज बाहर पे जाना है और बच्चा बीमार है तो बच्चा बीमार है, ठीक है, डॉक्टर इलाज करेगा, और हमको जाना है तो जाना है। तो इतना मेंटली टफ, ये सब चीजें हैं जो होनी चाहिए। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीजें हैं जो कि डिफेंस पर्सनल को सिविलियन से थोड़ा सा अलग खड़ा करती हैं। जी सही बात है। सर आजकल मतलब हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि एक एकेडमिक्स होता है और एक स्किल सेट होता है, कि उनका जो बैलेंस होता है कि एकेडमिक्स में भी अच्छा स्कोर कर रहा है बट वो क्या प्रेजेंटेशन देता है या कैसे बोलता है वो, तो सर वो आपके अपने लाइफ टाइम में उन दोनों का महत्व क्या दिखा है? एक लेवल ऑफ बैलेंस जो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि दोनों एक लेवल ऑफ बैलेंस होना चाहिए दोनों, तो सर वो कैसे हम लोग लाइक इनकलकेट करें सर कि एक एकेडमिक्स भी अच्छा हो बट प्रेजेंटेशन स्किल या कोई अलग स्किल सेट वो भी अच्छा हो? एकेडमिक्स तो अच्छा है, बाकी और जो आपके स्किल्स हैं, जैसे आपने बोला प्रेजेंटेशन स्किल या कोई और भी स्किल, तो प्रैक्टिस, आप तो प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा हो अपने आप उसमें। तो सर प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे तो वही आपको बेहतर। मैं समझता हूँ शायद नहीं है। अब ऐसा तो कुछ नहीं ना कि ना ठीक है कोई मेडिसिन है, कोई इंजेक्शन लगा दिया और वो फिर हाँ हम हो गए। जी ठीक है। सर ये जो इंजीनियरिंग का फील्ड है, इट इज नोन टू इंस्टिल लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, जिसके साथ साथ प्रैक्टिकल एबिलिटीज भी हम प्रैक्टिस मतलब इस पूरे कोर्स में हमें सिखाया जाता है। तो इंजीनियरिंग पढ़ना आपके वर्किंग एटीट्यूड पे कैसा इम्पैक्ट आया है? मतलब उसका उस इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपका आउटलुक कैसा था वर्किंग स्टाइल पे? देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि जिस बंदे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली वो कुछ भी कर सकता है।
ना आप, मेरे इतने ढेर सारे फ्रेंड है, तो कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई कहीं इंश्योरेंस में है, मतलब कोई ऐसा फील्ड बाकी नहीं है जहाँ की इंजीनियर्स नहीं है, जो मेरे साथ के रिटायर्ड बंदे हैं, और दे आर डूइंग वेल, सब अपने अपने फील्ड में बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जिसने इंजीनियरिंग कर लिया ना किसी भी फील्ड से, उसका जो सोचने का नजरिया हो जाता है, मतलब थिंकिंग हो जाता है, इतना ब्रॉड हो जाता है कि हाँ ठीक है, कि कोई चीज देख के कैसे क्या करना, तो शायद वो इंजीनियरिंग पढ़ाई का ही वो है कि हाँ ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, बाबर का मरा हुमायूं का पैदा हुआ क्या है, तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप क्या होता है ना कि इसमें क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ इंजीनियरिंग में अच्छा ये हुआ, फिर ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो उस सब चीजों से तो अपने आप जो है हमें आइडियाज आते आने लगते हैं। काफी प्रेशर हैंडलिंग भी सिखाया जाता है इस फील्ड में जी। सर, जो when you landed the job, जब आपको जॉब when you landed the job, सो जब आप जॉब कर रहे थे तब आपको कौन से बेसिक नॉलेज, जो फंडामेंटल्स हो, मैकेनिक्स हो जाए या फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाए, या कौन से फंडामेंटल बेसिक नॉलेज थे जो आपको जानने चाहिए थे, या आपने सोचा था कि अरे मैं बाद में सीख लूंगा, या क्या सीखने को मिला आपको उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल से, लाइक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज? अब जैसे कि हम मैकेनिकल वाले थे, हम लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, तो बेसिकली पढ़ा तो हमने भी कोर्स में, पर एक बात जान लो कि जब आप जाते हो, आपकी पढ़ाई अदर देन, मेरे को कंप्यूटर्स का पता नहीं, लेकिन जहाँ बाकी को पता है कि जो एक्चुअल हम बुक में पढ़ते हैं और जो हम जब हम जॉब फील्ड में जाते हैं तो पूरा 180 डिग्री अपोजिट रहता है। आप जो बुक में पढ़े हो और उस हिसाब से चलो तो फिर नहीं कुछ सकता है। तो उसी समय वो जो इंजीनियरिंग पढ़ाई के समय आपने जो अपने माइंड को इतना ब्रशअप किया है, तो वहाँ काम आता है कि अच्छा ठीक है, अभी यहाँ वहाँ ऐसा बोला था, लेकिन अभी यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज नहीं होती जो कि आपने पढ़ा है, कुछ ना कुछ वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था शिप कंस्ट्रक्शन, जहाज बनाते कैसे हैं, लेकिन हमको काम क्या दिया गया, शिप मेंटेनेंस का। अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ गए, मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्या है, लेकिन फिर धीरे 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 सीखते गए। सर, बट वो अडेप्ट आप कैसे किए? मतलब इतना जो गैप आजकल बोलते हैं कि एजुकेशन फील्ड और करियर में जो गैप होता है, तो बच्चा अडेप्ट कैसे करता है उस पर्टिकुलर गैप को, कि अरे नॉलेज तो अलग था बट सिखाया तो कुछ, कराया तो कुछ और जा रहा है, तो वो अडेप्ट कैसे किए सर आप? नहीं, तो टाइम लगता है ना, वो तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आप थोड़ा सा जो आप टाइम स्पेंड करते हो, आपके जो कलीग्स जो सीनियर्स होते हैं, या वो उनको देख के सुन के, फिर हार्डली 3 to 4 months इज मोर देन सफिशिएंट। और एक बार आप उसमें हो गए तो आपको पता चल जाएगा। आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी जो आप वहाँ नहीं पढ़ते हो, बुक में नहीं रहती है, लेकिन एक्चुअली वहाँ जाके पता चलता है कि हाँ अच्छा ये फेलियर होता है तो इसको ये बोलते हैं, ये फेलियर होता है तो इसको ये बोलते हैं, जो शायद बुक्स में नहीं रहती है। कुछ लोकल टेक्नोलॉजी भी लोग बना लेते हैं, तो वो सब धीरे धीरे बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस अपने आप आ जाती है। अब वही जब आप सीनियर होते हो किसी फील्ड में, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आपका जो वही एडॉप्शन पीरियड जो पहले 3 से 4 महीने था, वो 10 से 15 दिन हो जाता है, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस हो जाता है वहां का कि नेक्स्ट जगह जब भी आप जाते हो तो आप उसको जल्दी ग्रास्प कर लेते हो। सर, आपके इसमें इंफॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि आप चीफ शिपराइट आर्टिफिसर ऑफिसर भी थे, तो उस दौरान में आपका रोल क्या था और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे एग्जैक्टली इस टाइम पे? जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो शिप, पूरा शिप लोहे का बना होता है। हाँ, शिप का जो मेन बॉडी होता है उसे हल बोलते हैं। ओके। तो और हम लोगों का जो मेन काम था हल मेंटेनेंस, यानी कि पीछे से नीचे आगे वाला पोर्शन जो होता था, सबसे आगे वाला पोर्शन को फॉक्सल बोलते थे, सबसे पहले पीछे को आफ्ट, तो फॉक्सल टू आफ्ट और फोर टू मास्ट टू कील। कील मतलब सबसे बॉटम पोर्शन। ये पूरा जहाज लोहे का, ये पूरा का मेंटेनेंस हमारे अंडर में होता था। अच्छा। इन सब के अलावा जितनी भी डेक मशीन होती थी, लाइक क्रेन हो गई, बोट लोअरिंग के लिए हो गया, प्लस आपका एंकर ड्रॉप करते थे उसके लिए, प्लस क्या होता है, जितने भी लाइफ सेविंग अपरेटस होते हैं, वो फायर फाइटिंग एंड डैमेज कंट्रोल। राइट। डैमेज कंट्रोल इज मेन पार्ट ऑफ अस,
क्योंकि हम लोगों को सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में ही बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और इन केस ऑफ एनी डैमेज शिप को कैसे एफ्लोट रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। करेक्ट। तो आपने जितना मैकेनिकल में पढ़ा वो सब आपको अप्लाई भी करने हुआ, मतलब? हाँ। सर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला एक मेंटल टफनेस जो कि एक पर्टिकुलर सोल्जर में होती है, तो सर वो आपको इनकलकेट करवाएगी थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड, या नहीं? कुछ कुछ बच्चे थे, आपके कलीग्स थे जो कि ऑलरेडी मतलब इसमें थोड़े आगे थे, बट कुछ लोग थे जिनको खुद इनकलकेट किया गया एक जो मेंटल टफनेस बोलते हैं, तो सर वो आपने कैसे उस पर्टिकुलर थिंग को मतलब इनकलकेट किया आपने? वो होता क्या है कि जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं ना, वहाँ मतलब ये है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, 4:01 भी अलाउड नहीं है आपको बाहर आने के लिए। तो उसके बाद इतना पनिशमेंट मिलता था, तो उससे बचने के लिए लोग 4 बजे से पहले 3 क्वेश्चन पे आके खड़े हो जाते थे। तो वो प्लस दूसरी चीज है कि एक बार डिसिप्लिन आ गया आपके अंदर, तो फिर उसके बाद मेंटल टफनेस का ऐसा है कि कोई आपको कुछ लगता भी है, और अगर आप मना कर रहा है तो आप अपने आप मेंटली टफ हो जाओगे। जब ऑर्डर नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप मेंटली टफ हो। अब हम लोग जैसे थे वहां पे, तो हम लोगों को फोन नहीं थे हमारे उस समय पे, तो लाइन में लगे रहते थे। 8 बजे वो बंद हो जाता था और एसटीडी बूथ, और उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करते थे कि लाइन लगे, नंबर ही लगता था, फिर बंदो वापस से लाते थे, बात नहीं पाते थे, हफ्ते हफ्ते बात नहीं पाती थी, बट तो रोके रह जाते थे। तो वन टाइप ऑफ मेंटल टफनेस ही था ना वो, कि ना नहीं कुछ हो पा रहा। तो हाँ सर, उतना पेशेंस भी था आप में एंड डिसिप्लिन। पेशेंस वाज मजबूरी, हाँ वो पेशेंस नहीं मजबूरी थी, वो बाद में धीरे धीरे। ठीक है, वो तो सहना पड़ा फिर आपको। हाँ, ओके। तो आजकल हमारे जितने भी कोर्सेज में हम पार्ट लेते हैं, वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स करने में देते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। तो आपके नजरिए से आपके टाइम में आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, या आपको क्या लगता है हमें कौन से प्रोजेक्ट्स पे अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए इन फील्ड्स में, नेवी के फील्ड में या डिफेंस के फील्ड्स में हो? आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया? जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो तो जैसे कि अगर हम शिप में हैं तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट होता था कि शिप पर डॉकिंग एंड डॉकिंग। हाँ। शिप बेसिकली हम लोग को जो मेंटेनेंस करना था, तो मेंटेनेंस के लिए क्या होता है कि उसका कुछ सर्टेन टाइम पीरियड, शिप की हिसाब से उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। इतना टाइम पीरियड बाद उसको पानी से निकाल के हम बाहर खड़ा करते थे। उसका 3 महीने का मेंटेनेंस था, अंडर वाटर हल का, उसका पूरा पेंटिंग, जो भी सड़ गई प्लेट्स करोडेड हैं, थिंड हो गई हैं, उनको काट के नया वहाँ वेल्ड करना, और तो वो सारी चीजें थी अलग अलग। जो मेरे लिए जो चैलेंजिंग था वो ये था कि जो मेरा पहला शिप था INS विपुल, इट वाज स्मॉल मिसाइल बोट 56 मीटर लॉन्ग, उसमें एयर प्रेशर टेस्टिंग कभी नहीं हुआ था। और शिप्स का ऐसा होता है कि एयर प्रेशर टेस्टिंग, शिप्स को हम जो बना कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके वाटर टाइट सेक्शंस बनाते हैं, आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें क्या होता है कि अगर एक सेक्शन में किसी कारण पानी भर भी जाए तो वाटर टाइट रहेगा, तो दूसरा सेक्शन में पानी नहीं जाएगा, तो वो पानी उसी सेक्शन में कंटेंट रहेगा। तो उस सेक्शन में पानी जितना भी एकुमुलेट हुआ है उसको हम पंप डाल के पंप आउट करते रहेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो 1 2 10 पंप डाल दिया। इनकेस अगर हम नहीं पंप आउट कर पा रहे तो हमने उस कंपार्टमेंट को चारों तरफ से आइसोलेट किया, और जितना पानी उसका उतना ही काउंटर फ्लडिंग हमने उसके अपोजिट साइड में कर दिया। आगे भरा है तो उतना ही एक कंपार्टमेंट और हमने आइसोलेट, उसमें पानी भर दिया, तो एटलीस्ट सिर्फ हमारा स्टेबल है। हम लोग का मेन काम वही था। तो एयर प्रेशर टेस्टिंग बहुत टफ टास्क होता था कि कंपार्टमेंट को प्रेशराइज करो और कहीं कहीं से एयर निकलती रहती थी। और मेरे अर्ली ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग में ही मतलब मेरे को टास्क मिला था, बोला ना इसका तो एयर प्रेशर टेस्टिंग करना है। लगा मैं इवन रात को मैं 12 बजे तक लगा रहता था कि कैसे भी आज तो, क्योंकि एयर प्रेशर टेस्टिंग करो तो मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो कोई आएगा दरवाजा पर कुछ करेगा तो हमको रात में ही करना होता था, तो रात में करते थे। फाइनली कैसे मैंने पहले सेक्शन का एयर प्रेशर टेस्टिंग अचीव किया। लोगों ने बुला के बहुत, वो क्या मेरा बहुत वो हुआ था कि यस फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा
छोटे फ्लैग बोट में ऐसा कर दिया है टेस्टिंग। तो ऐसे टोटल ओवरऑल मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है शिप। हाँ, एक्चुअली शिप अगर फ्लोट करे, शिप का फ्लोट करना जरूरी है। हाँ, अगर वो भागने रहे एटलीस्ट फ्लोट करेगा ना, नहीं अगर फ्लोट नहीं किया तो फिर सिंक हो जाएगा ना। तो डूब जाए। हाँ, correct। फ्लोट करेगा तो कोई ना कोई आके रेस्क्यू करेगा। आजकल जो हाँ। आईएमओ के रूल्स हैं, इंडियन मैरीटाइम एविएशन के रूल है कि अगर कोई भी शिप डिस्ट्रेस में है तो जो भी नियर बाई शिप होगा, रिलेटेड भी या एनिमी कंट्री, उसको आके उसको सेव करना है। करेक्ट। और कौन सा शिप सी में कहाँ पे है, किस समय है, आईएमओ के पास उसकी आगे पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, उसमें क्या है, कहाँ जा रहा है, कब आएगा। तो जब ऐसा कोई डिस्ट्रेस सिग्नल होता है तो उसको बताया जाता है कि अच्छा ठीक, जितने भी शिप में तो सबको तुरंत डायरेक्शन दिया जाता है कि आप तुरंत उसके रेस्क्यू के लिए जाओ। तो आप फ्लोट रहोगे तो एटलीस्ट मैन को बचाना जो होता है, सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि आदमियों को कुछ ना हो, उसके बाद फिर और चीज देखते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कहते हैं शिप हमेशा फ्लोट रहे। करेक्ट। सेफ्टी कम्स फर्स्ट इन ऑब्वियसली। हाँ। सर, तो आपके पास ऑलरेडी 2 करियर ऑप्शंस थे जब आपने एग्जाम आपने क्लियर किया, और जब आपने पेरेंट्स को बोला कि अरे मेरा ये डिसीजन है, क्योंकि सर आजकल मतलब मेरे फ्रेंड्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स का ही अप्रेंशन हो जाता है कि अरे रिस्की है थोड़ा, मत जा, काफी मतलब रिस्क तो है ही इसमें। तो सर आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस समय और आपने कैसे कन्विंस किया? मतलब माय मदर वाज नॉट रेडी, एनीहाउ फादर वाज ओके, बट मुश्किल लगा, मतलब थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन उनको समझाया रात में कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो फाइनली वो मान गए। और सर आपके कोई कलीग्स को मतलब इसकी दिक्कत हुई, मतलब जो आपके फ्रेंड्स थे, मतलब उस समय की उनको भी प्रॉब्लम हुआ कि मतलब कन्विंस करने में कि मतलब हमें जाने चाहिए क्योंकि हमें वी रियली लाइक दैट एस्पेक्ट, तो मतलब जो आपके कलीग्स थे? हाँ, थोड़ा बहुत तो सबको था, बट लेकिन ये था कि एक्चुअली सच बोलो तो मैं कभी समुद्र देखा ही नहीं था। मैं यूपी से, मैं कभी समुद्र देखा था, तो एक अलग सा ही वो था कि नहीं जाऊंगा, शिप में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर का मतलब जितने मुंगेरी लाल के हसीन सपने से देखने थे सारे देख लिए थे। वो तो जब पहुंचा शिप में, पहली सेलिंग में इतनी वोमिटिंग हो गई कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर लगा कि कहाँ फंस गया, अब तो छोड़ के जाना है। फिर बाकी लोगों ने समझाया नहीं यार ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा ही नहीं बहुत लोग का ऐसा हाल था कि सी सिकनेस, मानसून में सी जब बर्फ होता है तो बहुत बुरा हाल होता है। बट यानी हम ये था कि जब घुस गए तो फिर अब तो पूरा टाइम निकाल के ही निकलेंगे। जी। वो इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि आजकल का जो मिलेनियल जनरेशन है, हम सबको टॉलरेंस और पेशेंस काफी कम हो गया है प्रीवियस जनरेशन से, आपके जनरेशन से। तो ऐसे टाइम पे मतलब आप जब पूरे पानी के साथ सराउंडेड थे, आसपास फैमिली से दूर रहना पड़ता था, ऐसे टाइम पे मतलब आपको गिव अप पूरा छोड़ने का मन करता था क्या, मतलब टोटली? शुरू के 1-2 साल में, मतलब उसके बाद नहीं। इनिशियली 1 ईयर लगता था कि नहीं है, कहाँ फंस गया है, ऐसा है वैसा है। बाद में फिर एक्चुअली शुरू में तो इतना था, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे भाई की शादी थी, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मेरे सिस्टर की एंगेजमेंट के समय मुझे छुट्टी नहीं मिली। अरे तो बट एनी हाउ वो सब पार्ट ऑफ ड्यूटी करके छोड़ना पड़ा। उसके लिए वो माइंडसेट डेवलप करना काफी डिफिकल्ट है। सर आपकी पर्सपेक्टिव से, लाइक आप इंडियन नेवी में आपने इतना इयर्स के एक्सपीरियंस है, अभी कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग में, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज या जो और अपॉर्चुनिटीज आ रही है स्पेशली इन द इंडियन नेवल फोर्स, कि हम वहाँ पे अप्लाई कर सके? सर अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो अभी तो आप लोग सिर्फ सीडीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो एट दिस एज, ठीक है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि वेयर यू अप्लाई, एम फॉर हायर पोजीशन। हायर पोजीशन इन द सेंस कि इफ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज,
try to go for Group A services, not even Group B. Group A through UPSC, and otherwise in private sectors तो do your best, जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी इतना बढ़िया अपना करो कि एटलीस्ट एक बढ़िया पैकेज, बढ़िया वो लेके आप निकलो वहां से कि, और अगर इनकेस जरूरी नहीं है कि हाँ सारे को मिले, पर उसमें ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे भी हो आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट दोगे तो एटलीस्ट आप रिकग्नाइज होगे। आप अगर आज कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहां पे बढ़िया दो, कल को किसी कंपनी में गया आप वहां जाओ तो आप थोड़ा सा मतलब क्या होगा कि अलग है, अपनी एक रिकग्निशन बनाओ, भीड़ से अलग हटके, तो लोगों को पता चल लगेगा ऐसा शिवम सिंह ये अदिति है। तो मतलब ये होना चाहिए कि इस तरह से जहां पे भी वहां पर बेस्ट दो। अपने आप आपको सिर्फ बहुत कम समय में आप अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, फिर उसके बाद आपको आगे रास्ता मिलता जाएगा। लेकिन एक चीज है कि इसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। हाँ आज मेरे को 15 लाख का पैकेज मिल गया और मैं खुश हो गया ना। आप ये देखो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 25 लाख का पैकेज मिलता है, जिनको 30 लाख का, जिनको, तो आप 15 लाख का पैकेज पे हो, आप इसमें 5 लाख का पैकेज पे हो, नो इशू। आप जो है जाओ आराम से करो और वहां पे बढ़िया दो। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि गए हैं और उसके बाद वहां से करके, आजकल तो गूगल एंड जो ये सब है इनके तो टाइम पे एग्जाम और टेस्ट होते रहते हैं। आप लोग जिस भी फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जहाँ की ये है कि फुल स्टॉप लग गया है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। आप ये सोचो कि जब कभी हमारे पूर्वजों ने जो कि जिन्होंने वो पहिया बनाया कि नहीं हाँ ठीक है, पहले घिसीट के लिए आते थे, फिर पहिया बनाया, अब वो सोचे कि नहीं हाँ अब हमारे लिए आसान हो गया, वो वही रुक गए होते अगर कि नहीं अब तो हमारी गाड़ी आसान हो गई है, ये गोला पहिया बना दिया, हम चलते रहेंगे। आज हम लोग यहाँ चलते। अभी हम राजधानी, हम जब डिप्लोमा में पढ़ते थे तो हम जो है रात को 12 बजे उठ के केवल राजधानी देखने जाते थे कि कितनी स्पीड से राजधानी जाती है। मतलब हम ये सोच रहे थे कि अरे राजधानी देखने चलेंगे यार कितनी स्पीड से जाती है, और देखा था। और अब बुलेट ट्रेन का सोच रहे हैं लोग। तो उसमें ऐसा है कि जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद जैसा अभी हम बुलेट ट्रेन की सोच रहे हैं, ये उधर स्पेन वाले और कोई ट्रेन दौड़ा रहे हैं जो उससे भी आगे दौड़ रही है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसलिए जो है कंटिन्यू लगे रहो, सेटिस्फाई नहीं होना है। सेटिस्फाई हो गए यानी कि आपका ग्रोथ बंद हो गया। सही बात है, हमेशा सीखने की इच्छा रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा करने की, सिग्निफिकेंस रहने की। ओके सर, ये एक काफी फेमस कहावत है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू मेक लेमनेड। तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स थे जहाँ पे आपको लगा कि यार ये आपत्ति आ गई है, ऑब्स्टिकल आ गया है एंड यू हैड टू फेस देम, और आपने कैसे रिजॉल्व किया और आपने कैसे किस अप्रोच से आपने उसको रिजॉल्व किया और फेस किया उसे? टोटल कोई कठिनाइयां, परेशानियां? अब ये तो जब जैसे जहाँ जो कठिनाइयां आई तो उसके हिसाब से भगवान सोल्यूशन देता। जैसे कि हम लोग एक बार गए थे पाकिस्तान नेवी के साथ, हमारा ज्वाइंट सर्वे था गुजरात में, एक सर क्रिक करके डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान नेवी और हमारे साथ वहाँ ज्वाइंट सर्वे चल रहा था। तो वहाँ पे वो 45 डेज का हम बिल्कुल फैमिली से कटा, शिप में न मोबाइल न नेटवर्क, कुछ नहीं है। वो बहुत बड़ा टाइम था। तो कैसे क्या कर, और किसी न किसी बात पे इंटर डिपार्टमेंट भी रहते थे, आज उनसे बहस करो, उनसे कुछ दिक्कत थी वो, क्योंकि हर जगह है एक डिपार्टमेंट वालों का दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ लफड़ा रहती है, जहाँ भी कहीं कुछ चीजें इंटरलिंक होती हैं। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए। तो हमारे जो कैप्टन थे उनको पास ऐसे 2-4 इंसिडेंट जब पहुंचे कि क्या किया जाए, तो उन्हें भी लगा कि ये तो कुछ लफड़ा है, ऐसे तो पुलिस कंपनी पागल हो जाएगी, ये घर से इतनी दूर है ना किसी को बात। तो उन्होंने फिर एक पूरे से कंपनी को इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा। ये शिप में बोले कि 5 बेस्ट आदमी उनको चूज करने हैं। अब वो शिप 5 कोई भी हो सकते हैं, उसने फिर उसके लिए अलग अलग गेम और ऐसा किया कि हाँ ठीक है, हर आदमी जो है 5 वोट्स देगा, 2 वोट अपने डिपार्टमेंट को और 3 वोट आउट ऑफ डिपार्टमेंट को।
और उसके बाद फिर ऐसे करते करते उसमें कुकिंग कंपटीशन, तो स्टेज शो, फिर क्या राइटिंग पोएट्री, जो कुछ भी करके ऐसे करके, तो मतलब हम जो 4 घंटा उसमें वर्किंग और भी कम कर दिया कि क्योंकि शिप में उतना ज्यादा काम रहता नहीं, जब शिप पे निकल गया ना तो ज्यादा काम उतना रहता नहीं। तो लोगों को 4-4 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे ड्यूटी करो, खाओ, सो जाओ, फिर 8 घंटे बाद फिर ड्यूटी आएगी, 4 घंटे ड्यूटी करो, फिर सो जाओ, ऐसा करके। तो वहां पे उन्होंने बिजी रखा कि हाँ कैसे क्या करना है, कभी तंबोला खिलाया, कभी कुछ कराया, तो ओके मेंटली आपको थोड़ा इजी करवाया थोड़ा। हाँ Stress, तो हाँ, मैं तो हैंडल नहीं हो पाता था। राइट सर, जैसे ही आपने लाइक बोला कि संतुष्ट कभी नहीं होना है लाइफ में, जो भी जी। मिलते जाए वो करते जाना है। तो सर अब अभी आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, तो आपका क्या नया एम है सर, जो हम भी उस चीज से इंस्पायर हो सके सर? एक्चुअली मैं जो है अभी रेलवे में भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो देखते हैं, कुछ चल रहा है दिमाग में कि मैं सोच रहा था एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करने में उतना मजा नहीं आता है। लोग इतने लेजी, और हम लोग फौजी हैं, जितना काम बाकी लोग और 8 घंटे में भी नहीं करते, उतना मैं 2 घंटे में करके बैठ जाता हूँ। अच्छा, वो लोग एक्चुअली माइंड सेट हो गया है कि लोगों को करना नहीं है। अब अच्छा हुआ है कि तो बायोमेट्रिक एंड ऑल दिस थिंग्स है, तो लोग कर रहे हैं, पर फिर भी तो मेरे को लगता है कि मैं अभी अंडर यूटिलाइज हूँ। सही बात है। देखते हैं, अगर कहीं सक्सेस हुआ तो कहीं स्विच कर लूंगा प्राइवेट सेक्टर में। आपका उसका पोटेंशियल यूज हो जाना चाहिए। सर, एज ह्यूमंस हमारा एक टेंडेंसी होता है कि हम इमेजिन करेंगे फ्यूचर मेरा ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो आप जब नेवी में ज्वाइन करने वाले थे, तो उसके पहले आपने कैसा इमेजिन किया था कि मेरा नेवी लाइफ क्या होगा, और ज्वाइन करने के बाद आपका नजरिया कैसे बदला? मैं बताया ना कि ज्वाइन करने से पहले हम लोग को कुछ ज्यादा जैसे कि हम देखते थे अच्छा फौजी है, ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ये रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस समय हमने क्या वो मजा हमें लगता था कि ये गेम हो, ये सब करने में मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, 2 मीटर चढ़े, उतर गए, नहीं मन किया नहीं चढ़े। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं था, चढ़ना है तो चढ़ना है, और बीच में छोड़ना भी नहीं, क्योंकि नीचे डंडा लेके खड़ा है। जी, वो वो हाथ छिल जाते थे, ये पैर छिल जाते थे, उसके बाद चढ़ना फिर उतरना, जो कहीं रुकने का कोई चांस नहीं था। एक बार जब तो लगता था कि ये तो सोचे थे कि मजा आएगा, वो मजा तो नहीं है। लेकिन ये था कि वो बहुत जरूरी था। एक बार जो ट्रेनिंग थी ना, उसके बाद तो इतना था कि वो लोग कहाँ जाना है, कहाँ आना है, 8-10 किलोमीटर दौड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब तक वो तैयार कर देते थे आपको। हाँ, 4-4 घंटे की कंटिन्यू परेड, वो राइफल लेके, और समझ में नहीं आता था कि आपको किस बात के लिए क्या है, कि आपको कुछ नहीं कर रहा हो, उधर से ऑर्डर आओ कि अप राइफल दौड़ के चल। पता ही नहीं किसने क्या किया, लेकिन अब पूरी की पूरी प्लाटून में अप राइफल दौड़ के चल। अब वो दौड़ के चल करके वो भूल गया, वो अपना बात करने में बिजी है, और हम ये राउंड पे राउंड लगाए पड़े हैं। फिर उसको याद आता, अच्छा हाँ ठीक है, फिर वो बोलता था वो अलग चीज थी। अब समझ में आता है, वो सब ये था कि आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप करना, सब तो दुश्मन नहीं थे, पर ये आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप करना। क्योंकि हम वहाँ जो हमारा मेन एम था, वो था कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए रेडी रखना है अपने आप को। अगर इतनी टफ ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो अब आप देख लो, आप लोगों ने अभी शेरशाह मूवी आई है, बॉर्डर देखा होगा, जो कोई भी देखा होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो चढ़ाई कैसी है, और कैसे, तो नॉट इजी टास्क। हाँ, ट्रेनिंग में ही उतना प्रैक्टिस दिया, तो फिर जब आए इतना प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। स्टैमिना तो प्रैक्टिस में मैं परफेक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ भी हो वहाँ प्रैक्टिस करो, जो भी चीज करो उसमें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, अपने आप रिजल्ट बेस्ट आएंगे। और प्रैक्टिस कभी कम भी नहीं पड़ती, मतलब इट मेक्स यू बेटर। सर, आजकल लोग मतलब जब काम करते हैं तो सेग्रीगेट कर देते हैं कि अरे मेरा पैशन तो अलग है, बट काम करने के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो सर, आपका कैसा इस पे पर्सपेक्टिव है कि दोनों को मर्ज होना चाहिए, पैशन और काम एक ही होना चाहिए एक आदमी का, कि नहीं पैशन अलग हो काम भी अलग हो तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो क्यों नहीं? ये कोई जरूरी नहीं ना कि पैशन और काम एक ही हो सके, ये कोई जरूरी नहीं ना।
तो ये है कि आप अगर जिसका एक है उसकी तो बल्ले बल्ले है Yes. कि उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्या बोलते हैं कि जिसका नहीं है अलग है, जिसका अलग अलग है, तो फिर then उसको तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मेरे साथ तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हो सारे, Yes, जी। sir. तो आप लोगों के लिए तो आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेटिक का जमाना है, सब कुछ ऑटोमेशन पे जा रहा है, पूरा तो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे रिमोट दबाओ और कहाँ का कहाँ क्या होगा। तो आप लोग तो कितना कुछ कर सकते हो, कितना मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग के हाथ में है, तो उस पर फोकस करो आप लोग कि चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो जिस फील्ड में हो। किसने सोचा था कि नहीं हाँ ठीक है, हम आप बैठे होगे कहाँ पुणे में, मैं बैठा हूँ मुंबई में, और हम और आप ऐसे बात कर रहे होंगे। मैं तो नहीं सोचा था, कहते आप लोग सोच सकते हो, बट लेकिन जब मैं आपकी एज में था तो मैं कभी नहीं सोचा था कि ना इस तरह से कहीं बात हो सकती है। तब तो फर्स्ट टाइम जब मैंने वो लैंडलाइन टेलीफोन हाथ में लिया था तो डर लग रहा था मेरे को कि ये क्या पकड़ा दिया, कहीं करंट न मारे, क्या करे। बट लेकिन और आज मेरी बेटी है, आप कोई सा फोन दे दो और कहाँ घुस के कौन सा गेम कहाँ, उसे सब पता चल जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो इसलिए आप लोग है ना, आप लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ऑटोमेशन का जमाना है, और उसमें आप लोग करो, कोई भी फील्ड उससे अछूता नहीं है। चाहे आप घर में वैक्यूम क्लीनर ले लो, डिश वॉशर ले लो, या फिर घर से बाहर निकलो, कहीं भी देख लो, हर जगह ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन। स्कोप काफी है इस फील्ड में। बहुत ज्यादा स्कोप है, आप लोग उस पर कंसंट्रेट करो। जी सर। सर हमारे लाइफ में हम काफी मिस्टेक्स बनाते हैं विच देन टर्न इनटू एक्सपीरियंसेस। तो आपके लाइफ में ऐसे क्या मिस्टेक्स थे या ऐसे क्या इंसिडेंट्स थे जहां आपने ऐसे सोचा कि यार ये थोड़ा अलग कर देता तो शायद ये काम बेटर हो जाता, या कुछ ऐसा सीखा जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे या हमें याद रखना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए? बगैर मिस्टेक्स के तो लाइफ होती ही नहीं है। हाँ बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं ऑब्वियसली, पर उनसे आप कुछ सीख पाओगे या नहीं ये मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग जो मिस्टेक्स अगर आपसे हुई तो जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट करने में लग जाओगे, उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाए। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और मेक श्योर कि वो दोबारा रिपीट ना हो। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी मिस्टेक्स, वो दोबारा रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा कि आपका जो फेलियर के चांसेस हो अपने आप कम हो जाएंगे। पहली बार जो कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें फेल हो गया, ठीक है, लेकिन दोबारा फिर हम फेल हो रहे हैं, और अगर सेम रीजन से फेल हो रहे हो तो मतलब कि ना हमने तो पीछे वाले मिस्टेक से कुछ सीखा ही नहीं ना, सुधार ही नहीं है। तो उसको एक्सेप्ट करें और उसमें इमीडिएट करेक्शन लें। राइट। बट ऐसे कोई इंसिडेंट्स है आपके लाइफ में जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जहां आपने मिस्टेक किया और आपने सुधार लाया? ऐसा तो कुछ अभी जी कोई बात नहीं। शिवम, यू वांट टू कंटिन्यू? एक्चुअली सर हमने ऑडियंस को ही बोला था, काफी इंटरेस्टिंग एक्चुअली क्वेश्चंस आए फ्रॉम द ऑडियंस इटसेल्फ। तो सर ऋतु स्वेन ने लिखा है कि आपके कौन से ऐसे सिचुएशंस थे जिसको आपने काफी, एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा सिनेरियो जिसको आप मतलब जिसने आपको काफी टफ बनाया, मेंटली टफ बनाया, एक ऐसा कोई एक सिचुएशन था कि सर ऐसे ग्रेजुअली होते गया, जैसे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई वैसे वैसे मतलब मेंटली आप टफ हो गए? ऐसा है कि आता है धीरे धीरे करके, एक के बाद एक कुछ ना कुछ जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, लेकिन अब वहीं पे बैठना नहीं था, मूव ऑन करना पड़ा। ठीक है, लाइक मेरे भाई की शादी थी, मैं बहुत हाथ पैर मारा लेकिन मुझे नहीं छुट्टी मिली, मैं कुछ नहीं कर सका तो यार, बट फाइनली नहीं चाहता कर लिया, अब क्या कर सकता था, मैं मूव ऑन किया। शादी के मैं करीब 15 दिन बाद मुझे छुट्टी मिली, मैं गया।
वो भी सिर्फ 1 वीक की छुट्टी मिली, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके पैदा होने पे मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैं उसके बाद मतलब करीब 2-2.5 महीने के बाद मैं जा पाया। तो ऐसा नहीं था कि नहीं, मैं बहुत बिल्कुल हम लोग फ्रंट एरिया में थे, लेकिन नेवी में क्या होता है कि मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज है। शिफ्ट पे क्या होता है कि बहुत बेयर मिनिमम लोग आदमी रखते हैं। तो अगर उसमें से हम जैसे डिपार्टमेंट थे कि फायर फाइटिंग डैमेज कंट्रोल हमारा पार्ट होता था, हमें उसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। और जब हम नहीं रहते हैं तो हमारी जगह पे कौन हमारी ड्यूटी लेगा, वो बंदा, या अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग की वो बंदा है तो ठीक है, जो रहता था वो भी अवॉइड ही करता था, क्योंकि जब आग लग जाए और उसके बाद तो सारे भागना चाहते हैं, तो कौन वहाँ रह के आग बुझवाए या फिर जो भी करे या डैमेज कंट्रोल कराए, दिक्कत होती थी। पता नहीं है वो कैसे कैसे करके। इवन मेरी सिस्टर के एंगेजमेंट टाइम में भी ऐसा नाटक की, तो मैं चलो ठीक है, शादी का मैं बोला छुट्टी दोगे, मैं तो भाग जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं भाग जाऊंगा। फिर मेरा कमांडर साहब बोलते आ रहे ने उसको पकड़ना, वो जाने नहीं पाई है। मैं कहा ना, मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिलीवर नहीं आ रहा था। हाँ। बोला रिलीवर आएगा तब जाओगे। मैं रिलीवर से बात किया, वो बोला मैं कल पहुंचने वाला। मैंने कहा मुझे आज जाने दो, बोला नहीं रिलीवर आएगा तभी तुम जाओगे। और शिप मेरा उस समय ओखा में था, हम लोग फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में थे, तो फाइनली वो रिलीवर आया तभी मुझे छोड़ा। तो ऐसी सिचुएशंस आई, लेकिन अब वो धीरे धीरे फिर लगा कि नहीं, हाँ अगर उस कमांडिंग अफसर की जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी करता, क्योंकि शिप में आग लग गई तो कैसे क्या करना है, जो पूरी ड्रिल जो भी चीजें होती हैं वो जितने अच्छे से मैं करा पाऊंगा शायद उतने अच्छे से बाकी लोग नहीं करा पाते। और ये सब चीजें ऐसे भी बता के नहीं होती कि अच्छा ठीक है आप नहीं है तो नहीं लगेगी। तो इसलिए जो है उस लेवल का स्टबर्ननेस भी होना चाहिए, मतलब कि जो कर रहे हैं उस पे डटे रहना चाहिए। सर ईशान श्रीवास्तव भैया से भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपको लाइफ में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, बट फेलियर्स आते ही जा रहे हैं, तो उसको सर ओवरकम कैसे किया जाए? स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ही थोड़ा और ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब बेसिक्स तो अच्छा है, लाइक फंडामेंटल नॉलेज तो अच्छा है, बट कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स हो जाए या कोई और रीजंस के वजह से वो करियर थोड़ा, मतलब प्रॉब्लम्स तो आ ही रहे, इंटरव्यूज हो जाए या करियर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो जाए, तो सर उसको कैसे आपके हिसाब से वो ओवरकम हो सकता है? देखो, अगर मेरा माना जाए तो इनिशियल स्टेज में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी पर्सन है, जितने भी फेलियर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास वो आपका लर्निंग फेज है, ठीक है ना, आपका लर्निंग फेज है, और आपको कोई बोलेगा भी नहीं अरे नहीं यहाँ अभी नया है, बच्चा है, सीख रहा है, कर लेगा, ये है। लेकिन आफ्टर 5 years आप फेलियर होना चालू करो, देखो अरे मारो बेवकूफ है, कुछ नहीं आता, पता नहीं कैसे यहाँ पहुंच गया। ये मेरा नहीं है, एक नॉन ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इनिशियल फेज को आप उसको मतलब ये दिल पे नहीं लेना है कि ना हम फेलियर होगा तो बस खत्म हो गया लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कहीं नहीं है, मैं बताया ना आपको कि एक फेलियर से अगर सब कुछ खत्म होने लगता तो फिर दुनिया में जितने लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। इसके लिए जो है फेलियर कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फेलियर आया है उसके बाद हम देखेंगे, उसको लेके बैठो मत, उस पर वो मत करो कि ना ठीक है वो अंदर तक तुम्हारे घुस जाए फेलियर। आप जो है उसको ठीक है फेलियर हुआ है, हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्यों हुआ है, उसके बाद अगली बार उसकी वजह से फेलियर नहीं चाहिए, कोई दूसरा फेलियर आएगा तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, फेलियर नहीं, आप उसको फेलियर मत देखो, ये देखो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। अगली बार जो पहला फेलियर वो नहीं होगा, दूसरी बार दूसरा फेलियर होगा वो नहीं होगा, तीसरी बार फेलियर, तो चौथी बार में आप मास्टर हो गए उस काम के लिए। जब चौथी बार करने जाओगे तो आपसे अच्छा कोई काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने उसके जितने भी फेलियर के चांसेस थे वो सारे आपने टेस्ट कर लिए हैं और अब आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज के फेलियर से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नहीं हाँ अरे मैं अभी फेल हो गया, मैं कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये मेरा लर्निंग स्टेज है। आप कहीं जॉब में भी जाओगे तो वहां पे भी लोग कुछ ऐसा होता है स्मार्ट लोग जो क्रिटिसाइज करेंगे, अरे तुमको ये नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं आता, अरे तो नहीं आता तभी तो आया, अगर आता तो कहीं गूगल में बैठा होता। नहीं आता तो आप मेरे कलीग हो, आप इतने पीस में रखा होते तो आप कहीं और अच्छी जगह होते।
जी। Yes. तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, फेल्योर से नहीं घबराना है, किसी की क्रिटिक से भी नहीं घबराने का। अपने आप को एकदम बिल्कुल मस्त मजबूत रखो और हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, Yes, sir. चीजों को दिल में मत लो। Yes, sir. सर, रमा विद्या दीदी ने एक्चुअली एक क्वेश्चन भेजा है। लुकिंग बैक एट योर लाइफ, अगर आपको कुछ चेंजेस करने होते, लाइक कुछ चेंजेस के वजह से आप थोड़ा और आपकी जो लाइफ होती है वो इजियर हो जाती या और हैप्पियर होती, तो ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं कि जो आप कर पाते, मैं कर लेते उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में? लाइक ऐसे कुछ डिसीजंस थे जो आपकी लाइफ थोड़ा और इजियर और सिंपलर या और हैप्पियर हो जाते उस डिसीजन से? हाँ, एक मतलब 2006 में मेरा ट्रांसफर आया और 2005 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुझे अपने चॉइस का ट्रांसफर जाने का मौका मिला। जो मेरा बॉस था उसने मेरे को बोला कि इफ यू वांट टू एनीवेयर आई कैन सेंड यू। तो मैंने बोला नो सर, लेट द नेवी सेंड, आई एम रेडी टू गो एनीवेयर। और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ एक सर्वे शिप में। वो सर्विस मैं था ऐसा कि मुझे शिप निकलता था उसके पहले वोमिटिंग चालू हो जाती थी, सी सिकनेस बहुत था मुझे। और वो शिप ऐसा था जो कि 5 महीने में 5 दिन भी हार्बर में नहीं रहता था। वो 30 दिन 25 दिन 28 दिन वो सेल करता था। बुरा हाल था, हॉरिबल लाइफ। मतलब 2 साल मैं उसमें ऑन बोर्ड सब, और उसमें भी मैं एज डिपार्टमेंटल रिपोर्टर था, मेरे नीचे मेरे 4 जूनियर थे। और तो वो टफ टाइम था मेरे लिए। फिर मुझे लगा कि काश मैं अगर कहीं कोई श्योर एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर ले लिया होता तो एटलीस्ट लाइफ अच्छी हो जाती। हाँ, थोड़ा इजी हो जाता आपके लिए। और थोड़ा नहीं, बहुत इजी। वो टफ टाइम था मेरे लिए। हाँ। सर, ज्यादा यहाँ पे पूछ रही है कि कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको काफी मेमोरेबल आपके दिमाग में है फ्रॉम योर नेवी डेज, कि ऐसा काफी एक बहुत बड़ा इंसिडेंस व्हिच यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ? कोई ऐसे एंजॉयमेंट वाली या कोई ऐसे हार्डशिप स्टोरी, लाइक एक लेवल पे जो कि आपको काफी आपकी मेमोरी में वो लाइक इंस्टिल्ड हो गया है? चाहे कुछ भी हो, आप ये भूलेंगे नहीं, ये एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसा तो एक तो जो मैंने बताया था कि जो मैंने एयर प्रेशर टेस्टिंग किया था, मतलब अर्ली ईयर, मतलब आई थिंक सेकेंड ईयर ऑफ माय सर्विस मैंने ये किया था। तो बीइंग वेरी यंग इन सर्विस, और उसके लिए मुझे ऑनर किया गया, तो दैट वाज वेरी गुड। बाकी तो चीजें थी। और एक था ऐसा कि आई वाज मतलब just normal in swimming. And one incident, and on each and every promotion we have to pass swimming test. And swimming test is not just you put on swimming trunk and you jump in swimming pool. It is with full pant, full shirt. That is Navy, one of the Navy dress. Navy is having total 12 numbers of dress. So that number 10 dress, the full sleeve cotton full sleeve shirt and cotton full pant, उसको पहन के पानी में जंप करना, फिर स्विमिंग करना इस साइड से उस साइड, और उसके बाद फ्लोटिंग करना। वेरी टफ टास्क, जिनको जो नॉर्मल स्विमर है उनके लिए। और मेरा प्रमोशन आया हुआ था, मैं करीब 4 बार मैं स्विमिंग टेस्ट के लिए गया, मैं 4 बार फेल हो गया। अच्छा। तो अब सब आते थे, मैं हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को स्विमिंग टेस्ट होता था, मैं जाता था और फेल हो गया था। फिर मेरा बहुत ही परेशान, बोला इतने में तो मैं किसी चूहे को भेज देता, तू ही पास हो गया था, तू नहीं पास हो रहा है। तो मैं बोला सर क्या करूँ, जाता हूँ। और वो जो वहाँ पे एक्चुअली जो इंस्ट्रक्टर था जो टेस्ट लेता था, वो भी बहुत था, उसको चाहिए था कि कहाँ रहते हो। अब उस समय तो क्या था, फ्लोटिंग करना ही भारी होता था, दोनों हाथ ऊपर करो तो एक हाथ ऊपर करो, तो ये मतलब कहाँ घर है तुम्हारा, मतलब वो अलग ही उसको लगता था कि ना ठीक है सब मजाक चल रहा है। और उतने में फिर जहाँ दोपहर हम गुड़ गुड़ करके पानी पीते थे, तो एक कोई डंडा पकड़ा जाता था और डंडा पकड़ के तो बस तुरंत फेल कर देता था। तो जो है फाइनली एक कमांडो करके मेरा एक्सो चेंज हुआ, कमांडो था जो है नेक्स्ट एक्सो मेरा।
तो उसने हैंडिंग और टेकर बताया कि ये 4 बार से स्विमिंग टेस्ट के जा रहा है और इसका जो प्रमोशन आया हुआ है, और अगर अब ये पास नहीं होगा तो जो है फेल हो जाएंगे। इसका प्रमोशन ऑर्डर वापस भेजना पड़ेगा। जी। वो बोला मेरे को, हम लोग पार्टी कर रहे थे एक जगह पे, हमारा इंस्टीट्यूट था उसमें, तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा है प्रभात की, अगर मेरे को कोई बोले कि मेरा प्रमोशन ऑर्डर आया हुआ है और मैं यहाँ 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ, नीचे जंप करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर आप कमांडो हो, मैं कमांडो नहीं हूँ, मैं नहीं जंप कर सकता हूँ। तो बोला ओके, मीट मी इन स्विमिंग पूल टुमारो मॉर्निंग 6 o'clock। तो मुझे लगा कि ही इज जस्ट जोकिंग। मैं गया और घर में सो रहा था, मेरे पास जो है आया 5:45 पे फोन शिप से। बोला सर कहाँ? मैंने कहा यार सो रहा हूँ, क्या हो गया सुबह सुबह? बोला 100 साहब निकल गए हैं, बोले कि वो प्रभात को स्विमिंग सिखाने जा रहा हूँ। और सलाम मैं तुरंत भागा गया, तो अब उठा, फ्रेश हुआ, वहां पहुंचा तो देखा तो कोई नहीं। तो वहाँ जो बंदा था उससे पूछा कि कोई आया था? तो बोला हाँ एक लेफ्टिनेंट कमांडर आए थे। मैं बोला आप प्रभात हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने उसको बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार कुछ सिखा दो भाई, अब वो तो जान लेगा मेरी। वो बोले कि ठीक है, उसको भी थोड़ी दया आई मेरे ऊपर, फिर उसने थोड़ा बहुत बताया। फिर अगले दिन जब मैं दोबारा गया तब मैं फाइनली पास हो गया। अच्छा। तो उसने भी मतलब मेरा बहुत वो किया कि जो है कैसे हो तुम, स्विमिंग नहीं आती, ये है वो है। बट अच्छा आपने फाइनली सीख लिया और फिर पास हो गया एग्जाम। स्विमिंग आती थी, बट दैट आप पूरे ड्रेस में स्विमिंग करना ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है, हेवी हो जाता है। और बहुत हेवी हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत होती है। Sir, उसके Rishikesh, yeah, sorry sir, हाँ, please continue sir. उसके पहले मैं एक और प्रमोशन में टाइम पे मैं पोरबंदर में था, तो वहाँ जब मेरा प्रमोशन हुआ तो वहाँ स्विमिंग पूल नहीं पोरबंदर में। बहुत वो बोले कि जो है अब वो एक्सेल स्विमिंग टेस्ट होगा। मैं कहा ये तो मारने का पूरा इंतजाम है। तो मैं बोला सर मेरे को कहीं भेज दो मुंबई, मैं जाके स्विमिंग टेस्ट दे के आता हूँ। बोले नहीं, जब हम लोग फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करते हैं तो एक्सेल स्विमिंग टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और वो सबसे आगे फॉक्सफुल से बोला कूदो। मैं कहा तो बहुत हाइट है, नहीं कूद सकता। मैं 4 कदम पीछे आया, बोला जंप। मैं कहा सर बहुत ज्यादा। फिर ऐसा ऐसा करके मैं आधे से ज्यादा जहाज तो ऐसे ही क्रॉस कर लिया। नहीं सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। फिर एक नया पीछे धक्का दे दिया और फिर गुड़ गया पानी में। जब कूद गया तब तो फिर कर ही लिया। हाँ, तब तो फिर करना ही पड़ा फिर। Sir, Rishikesh sir, are you there right now? Sir, उनको कुछ क्वेश्चन थे आपसे पूछने के। हाँ, yes, I'm here. Yes, sir. हाँ, गुड इवनिंग सर एंड आप सभी को और सर आपको भी शिक्षक दिन की शुभकामनाएं। और मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ सर, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अभी के जो यंग जनरेशन है, मतलब अभी के जो स्टूडेंट्स है या फिर जनरेशन है, उनको आप क्या ये देना चाहते हो संदेश लास्ट में? अभी तो एंड ऑफ द सेशन होने वाला है, तो आप इसमें आप क्या मतलब उनको दे सकते हो संदेश कि फॉर द फ्यूचर मीन्स ग्रेटिट्यूड के बारे में, और मीन्स हाउ दे कैन परस्यू देयर एम एंड एम्बिशन and how the discipline they can bring in their life. So उसके बारे में आप थोड़ा सा insight दोगे तो that will be better for the students also. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहां पे है वहां पे अपना बेस्ट दें। बस ये मेन इस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लो कि नहीं, अगर हमको पढ़ना है तो हम पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, अगर हम खेलने गए हैं तो हम उस समय बेस्ट अपना खेलने में दें, आगे एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सब कुछ अपने आप आपको मिलेगा, आप जो चाहोगे। अगर आप जो चाहते हो उस दिशा में, उसको पाने के लिए अगर आप उस दिशा में कुछ भी प्रयास कर रहे हो तो उसके लिए आप अपना बेस्ट दो। जरा से कुछ जाए इसमें छोड़ो, या ये मैं सोचो कि नहीं यार ठीक है, अच्छा मैं कल से करूंगा ना, अभी से अब बेस्ट देना चालू करो, यू विल गेट व्हाट यू वांट। ओके, थैंक यू सर। Thanks. थैंक यू। शकाइना सर, शकाइना के पास कुछ शब्द हैं, वो आपसे कहना चाहती है एक्चुअली, कीवर्ड she wants to say to you. Also, I think, yeah, no issues. Oh wait, Yeah, she's fine. Am I visible? yes, Shakaina, you are. Yeah. Actually, can everyone turn on their cameras? We'd like to take a group photo. Yeah, if it is possible for everyone, please do that.
Well, I think I'm sorry if I'm disturbing, but hello everyone. I'm Ishan Srivastava, the secretary of the ISET. But I think, Shekaina, we can proceed with our plan, and photo part we can do at the later age, right? Okay, no problem. Yeah. So, good evening, everyone. I'm Shekaina Ezekiel from TEENTC, and I'd like to take this opportunity to thank our chief guest, Mr. Prabhat Kumar Srivastava, who very kindly consented to offer his valuable time to enlighten us about his journey through life. Further, as this was a first event organized by ISETS for this academic year called Anubhav, we'd like to thank him again for accepting our invitation. A heartfelt gratitude to the faculty present in the meet. A big thank you to our Secretary Ishan Bhaiya and Joint Secretary Kumar Shivam Singh, who organized this event, and committee members who arranged the same. Thank you all for attending our first ever event. Hope you found it insightful, and we'll see you at our next event really soon. Thank you so much. You have been a great audience. And also, Well, thanks again. Thanks again. Prabhat sir, thanks a lot. And on the behalf of my committee, my department, and my college, I would like to ensure that you are having a good time with us and you enjoyed talking with our two lovely anchors who interacted very beautifully with you, I guess. I hope there was no issue with them, but they are just students and including me. So it was very wonderful of you, sir, that you gave us the time. And thank you, sir. Thank you. I really give my consent that it was a wonderful session. On behalf of my entire ISETS committee, I would like to seriously thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you and Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. Can we have a photo session? I guess our technical member Ishan Modi will be there for capturing us. So every one of us, including my committee members, can we just turn on the cameras and we have a good photo? yeah, before that, I just want to say this to all the faculty members present here and to sir as well. A very happy Teachers' Day to all of you all. We're very happy and we're very thankful that you all support us at all times. Thanks for your constant support, teachers. Thank you. And it wouldn't have, like, conducting this whole event, sir, ये possible ही नहीं होता सर अगर teachers का इतना effort नहीं लगता सर. So thank you so much कि आपकी consent and with your help we were able to do that, sir. Happy Teachers' Day once again. सर इतने like अच्छे दिन पे आपने ही हमें इतने सारे lessons दे दिए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सर? जी sir. Okay, I think we can take the screenshot. Yes, great. We are good to go for the screenshot. Okay, can we have a thumbs up, everyone? Can we have a thumbs up? Okay, great. I think Modi has done his task. And well, the host of the event can stop the recording. And a wonderful event, guys, wonderful event. Thanks to faculty Rishikesh sir, Adesh sir for being there, for joining our first event. And a very big thanks to our guest also, Prabhat sir. I am indeedly repeating the thanks to you because it was really enjoyable session. I enjoyed really. And thank you for your valuable time, sir. It has been more than 1 hour and we maintained the participants also. So it was really enjoyable. Thank you, sir. And I would now request that except my committee members, everyone can leave. Thank you, sir. Thank you, Prabhat, sir. Thank you. Thank you so much, sir.